I had just started my UPSC journey and just struggling to understand like which subject I should opt for my optional. So along with that, a lot of other queries I do have. For example, which subject is most scoring so that I can opt it as a optional. If all those type of questions you have in your mind, then this is the right place to be. Hello guys, my name is Avinash. I welcome you to my YouTube channel. Now in this particular video, we are going to discuss about how to opt for optional, which are the main criteria that we should have in our mind while opting for our optional, and specifically for those who don't have humanities background as their background. For instance, it may happen you are from another field. For example, in this particular series we are discussing about the students or aspirants that come from science field. So if you are someone coming from science field, you don't have any humanities background, then which subject you should opt as an optional? These type of questions we are going to discuss in this video. So now let's get started off with our video and discuss more about these questions. So let's get started. So guys, in this particular series we had already understood about what are the positives and negatives for an aspirant who is preparing for UPSC and belongs to science background. So along with that, we had also decoded about UPSC syllabus, how to start the UPSC journey if you are someone who are just beginning of your journey, and how to leverage the qualities that we do have as a science aspirant or a science student. So all these things we had discussed earlier. If you had not watched videos among them, then the link of playlist is displayed on your screen. You can go there and just check that out. Right now we are understanding about how to opt for optional. Specifically in that case, for example, if you are not from humanities background, and we all do know in the examination itself, maximum or core subjects that we have to prepare for this examination come from the humanities background. So in this type of scenario, which subject we should opt? This is a question that most of the aspirants do have. So firstly, let us understand why it's so important to understand which subject we should opt or as an optional. So main reason is optional plays very crucial role in our UPSC preparation or UPSC journey, because somewhere when we are preparing well for our mains examination, then ऑलमोस्ट सब बच्चों के, जो हम जीएस के मार्क्स बोले तो जीएस का प्रिपरेशन बोलो, जीएस के मार्क्स बोलो, नॉर्मली इक्वलेंट ही होते हैं एक दूसरे के, बहुत कम डिफरेंसेस हमें मिलते हैं. मगर जब हम उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स में जाते हैं तब उनमें बेसिकली बहुत सारा वेरिएशन मिलता है. सो व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग इज कि जो हमारा ऑप्शनल है वो हमारी हायर प्रोबेबिलिटी बनाता है कि हमारी रैंकिंग कौन सी आएगी. वो रैंकिंग, सही रैंकिंग लाना, कट ऑफ क्लियर करना, वो सब के लिए हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए. इसी वजह से ऑप्शनल के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. और दैट्स वाई वी हैड दिस पर्टिकुलर वीडियो जस्ट टू डिस्कस विच ऑप्शनल वी शुड ऑप्ट. So second thing that while choosing the optional, then second thing that we can have in our mind is we should choose optional that comes from our stream. For example, if you are someone who comes from the stream, for example, you had done we can take the instance of a person who has done his BA or MA in the English literature. So if that's you, तो आप ऑप्शनल में इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर सकते हो. इफ़ यू आर समवन हु कम्स फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आप इंजीनियरिंग की जो भी आपका इंजीनियरिंग का फील्ड है वो अगर लिस्ट में है, देन यू कैन ऑप्ट दैट एज ऑप्शनल. So these are the criteria that you can do, because somewhere we had spent a lot of time studying all those things that were related to our stream. So that's where we can say कि we are more confident with those subject. कभी भी ये मत सोचना, सपोज करो मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का एग्जांपल दे रही हूँ, यू आर वेल ऑफ विद योर इंग्लिश लिटरेचर वाला स्टफ एंड ऑल, आप सिलेबस गो थ्रू करो, आपको पता चल जाएगा कि आप उस सिलेबस के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द सिलेबस, देन आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट नॉट गो टू एनीवेयर एल्स और नॉट ऑप्ट एनी अदर ऑप्शनल. बिकॉज समवेयर अगर आप ये सोच के कि चलो ठीक है मेरे इंग्लिश लिटरेचर तो था, बट समवेयर मेरे को ज्योग्राफी तैयार करनी ही है, मुझे हिस्ट्री तैयार करनी ही है इस एग्जामिनेशन में, तो मैं उसको एज अ ऑप्शनल ले लेती हूँ. तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है. एंड इफ़ यू आर समवन जिसका स्ट्रीम ऑलरेडी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट में मेंशन है, तो आप उसको चूज करो, उसको ऑप्ट करो, तो आप एटलीस्ट हाफ वे डन होंगे.
मतलब एटलीस्ट आपको 50% ऑफ द सिलेबस आता होगा, तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल है। आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना, आपको 50% से स्टार्ट करना है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो फर्स्टली ट्राई और प्रेफर योर ओन स्ट्रीम, एंड इफ यू आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल विद योर स्ट्रीम एंड यू हैड सीन द PYQs, हमेशा याद रखना जब भी हम ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिस करनी है। फर्स्टली हमें देखना है कि उसका सिलेबस क्या है, फिर हमें देखना है उसके PYQs, मतलब उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो कौन से आए हैं। थर्ड थिंग वी हैव टू इंश्योर इज कि जो वो सब्जेक्ट है उसका मटेरियल मार्केट में इजीली अवेलेबल है या नहीं। सपोज करो आपने कोई ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया जिसका सिलेबस मार्केट में है ही नहीं। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बोल सकते हो कि अगर मेरा ही वो स्ट्रीम है तो मुझे अलग से मटेरियल क्यों चाहिए, बिकॉज जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप उसको नॉर्मल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, वो डिफरेंट होता है। जब हम उसी सेम सब्जेक्ट को UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। इसलिए जब हम सपोज जैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर का यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो जब हम इंग्लिश लिटरेचर UPSC के लिए तैयार करेंगे तो वो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन वेरिएशंस आते हैं, तो वो हमें ध्यान में रखने होते हैं। इसीलिए हमेशा वही तीसरा जो हमारा कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है कि वो ऑप्शनल ऑप्ट करो जिसका सिलेबस आपको मार्केट में, सिलेबस तो नहीं, मटेरियल मार्केट में आपको मिल जाए इजीली। अदरवाइज फिर बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है कि हमें कैसे उन पर्टिकुलर पॉइंटर्स या उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कैसे हम कवर करें जिनका मटेरियल मार्केट में नहीं मिल रहा। तो ये 3 क्रूशल थिंग्स ज़रूर याद रखिएगा। सो ये तो उनके लिए हुआ जो अपनी स्ट्रीम को लेके कॉन्फिडेंट हैं एंड दे आर वेल ऑफ विद इट, और वो लिस्ट में मेंशन्ड है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसका जो स्ट्रीम था वो लिस्ट में मेंशन नहीं है, एंड अलॉन्ग विद द लिस्ट सेकेंड थिंग जो होती है कि आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, PYQs देखे हैं एंड यू गेट टू नो कि समवेयर आई एम नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस और अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, सो आई थिंक दिस विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन टू ऑप्ट। अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में है तो हम अगले स्टेप में जा सकते हैं जो क्या कहता है, दीज आर जस्ट माई परस्पेक्टिव, अदरवाइज यू कैन एनालाइज योर सेल्फ एंड चूज अकॉर्डिंगली। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट से चलते हो, लाइक यू गो बाय क्रोनोलॉजी कि अच्छा इससे ऐसा हुआ होगा और इससे ऐसा हुआ होगा, तो मतलब यू बेसिकली यू एस्टैब्लिश लॉजिक फॉर ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको ज्योग्राफी ऑप्ट करने में ज़्यादा सही रहेगा। इफ़ यू आर समवन जिसका फर्स्ट कंडीशन दैट मीन्स कि आपका स्ट्रीम वाला सब्जेक्ट आप नहीं ले रहे हो, उस केस में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोच के आगे चलते हो तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी ही क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी में भी वो इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल है ना, कंसेप्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, और चीज़ें याद हो जाती हैं। और एनीवे हमें ज्योग्राफी तैयार करनी ही है अगर हम लोग अपने कोर सब्जेक्ट्स की बात करें, और वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन का ही देखना है। तो ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड करती है, जिसकी वजह से अगर आपको कोई एक्स्ट्रा या कुछ अलग जीरो से ही स्टार्ट करना है तो इट विल बी बेटर कि यू ऑप्ट फॉर ज्योग्राफी इफ़ यू आर समवन फ्रॉम लॉजिकल माइंडसेट। Then comes sociology. If you are a person who always feel very much fascinated by the things that go on around us, और जो सोसाइटी में हो रहा है, you always try to establish logic, try to understand कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, क्यों है, मैरिज करते ही क्यों है, अदरवाइज क्यों नहीं रहते, लिव इन को इतना ज़्यादा सोसाइटी प्रमोट क्यों नहीं करती है। नाउ डेज इट इज़ बिकमिंग ओके वाला थिंग, बट अदरवाइज इट्स नॉट दैट मच एडमिसेबल। स्पेसिफिकली राइट नाउ ऑल्सो अगर आप फैमिलीज में जाओ तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद लिव इन वाला रिलेशनशिप, बट दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विद मैरिज। वाई सो? इफ अगर आपके अंदर भी इस तरह की क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, यू वॉन्ट योर लॉजिकल माइंड और मेरा कैलकुलेटिव माइंड टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है, ये इंस्टीट्यूशन ऐसे क्यों वर्क कर रहा है, ये इस तरह में क्यों ही लाइफ जीते हैं, क्यों वुमेन को इस तरह से रखा जाता है, पेट्रियार्कल माइंडसेट से हो क्या क्या रहा है, अगर आपको ऐसी चीज़ें फैसिनेट करती हैं तो डेफिनेटली आप सोशियोलॉजी ऑप्ट कर सकते हो। बिकॉज सोशियोलॉजी में क्या होता है, जो सोसाइटी के ही चीज़ें हैं, जैसे मैरिज है तो उसके बारे में ही एक्सप्लेन किया जाएगा, बट डेफिनेटली नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इमोशनली आप उस चीज़ को चार्ज होकर कुछ बता रहे हो, पर जो थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप एनालाइज करोगे। अलॉन्ग विद दैट थिंकर्स वाला चीज़ तो है, अगर आपको अपना पर्सपेक्टिव भी लिखना है वो भी आपको अपना पर्सपेक्टिव ना लिख के किसी भी कंसेप्ट में जो थिंकर था उसका कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके बताना है।
सो दैट्स हाउ यू हैव टू ऑप्ट फॉर ऑप्शन फॉर सोशियोलॉजी. इन सोशियोलॉजी क्या होगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन वाला चीज़ आएगा, बट बेसिकली अगर आपको सोसाइटी फैसिनेट करती है समझने के लिए, तभी आप सोशियोलॉजी को ऑप्ट कीजिएगा. अदरवाइज इट मे सीम टू यू कि सिलेबस बहुत आसान है, बट समवेयर क्वेश्चंस की आंसर जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ें होती है. फॉर इंस्टेंस अगर आप सोशियोलॉजी के आंसर्स लिख रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ भी करंट में कुछ भी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल गाजा वॉर चल रहा है, तो यू कैन बी लाइक क्वेश्चन पेपर सेटर जो है वो ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट द सोशियोलॉजी ऑफ गाजा वॉर. तो आपको उसमें अब जो थिंकर्स पढ़े थे उनकी इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, और आप एक आधी चीज़ अपनी लिख सकते हो, पर जब अपना लिख रहे हो तो उसमें आपके इमोशंस नहीं होने चाहिए. तो बेसिकली मतलब उस तरह की फिलोसफिकल चीज़ें, फिलोसफिकल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सोशियोलॉजी में और भी बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ऑप्ट. सो दिस इज अबाउट ज्योग्राफी. एंड इफ़ यू आर समवन हु थिंक कि पॉलिटिक्स में बहुत मज़ा आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत मज़ा आता है, जयशंकर जी की आप बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हो एंड ऑल. So if you are someone who is more into political wala stuff that fascinate you, then definitely you can opt for political science and IR. एंड प्लीज़ रिमेंबर, ऐसा कुछ नहीं है कि जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ज्योग्राफी वाले उनके ज़्यादा आएंगे, सोशियोलॉजी उनके ज़्यादा आएंगे. बिकॉज जब भी आप ट्रेंड देखोगे तो डिफरेंट सेट ऑफ जो पीपल हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आते हैं. कोई कई बार पॉलिटिकल साइंस से टॉपर मिलेगा, कई बार ज्योग्राफी से भी मिल सकता है, सोशियोलॉजी से मिलता है. तो दैट शोज़ कि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के मार्क्स में कुछ इतना खास डिफरेंस पड़ेगा. जो डिफरेंस पड़ेगा वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर पड़ेगा. तो इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन, दैट हाउ वेल यू वर प्रिपेयर्ड फॉर द ऑप्शनल. सो दैट्स वाई इट्स सेड कि ऑप्शनल को बहुत ध्यान से चूज़ करना है, और एक बार चूज़ कर लिया फिर उसको स्टिक करके आगे बढ़ते चलो. So this is about, these are the three, I can say, my suggestions. If you are someone who can fulfill any one among these conditions, for example logical mindset, geography, analytical aspect of society, then sociology. And if you are more into political and international relation, या उस तरह की न्यूज़ वगैरह को ज़्यादा ही फॉलो करने में मज़ा आता है, then you can opt for political science and IR. So these are the suggestions from my side, but you can opt according to your wish. Actually, basically through this video I'm facilitating how you can opt for right optional so that your journey can be simplified. But at the end you do know about yourself better than me, so it's best, like you are the best person to decide with which optional you should go with, because you know your weaknesses, you know your strength. But हाँ, always remember certain points if you are going for it, कि जो हमारा ऑप्शनल होना चाहिए that should be the subject of interest. ऐसा नहीं होना चाहिए कि if I am more interested into political news and all और मैं लेके बैठी हूँ ज्योग्राफी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं वो मज़ा नहीं आएगा. कहते हैं ना कि जब आपका काम और आपका पैशन दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो मिरेकल्स होते हैं. तो वही यहाँ पे भी है कि अगर आपका इंटरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट है आपने उसे ही ऑप्शनल रख लिया, तो डेफिनेटली यू विल बी इन कंडीशन कि जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आ रहा है, कि मतलब आप एफर्टलेसली वो चीज़ें करते चले जाओगे. अदरवाइज ऑप्शनल तैयार करना भी अपने आप में एक बोझ बन जाएगा. और रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल, रिसोर्सेज जो हैं उनके पर्टिकुलरली ईजिली अवेलेबल होने चाहिए. अगर रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल नहीं है तो आप तैयारी ही कैसे करोगे. मैंने पहले भी बोला है कि व्हाट हैपन्स इज कि जब हम सेम चीज़ अपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं वो डिफरेंट होती है, जब हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो इसलिए हमें रिसोर्सेज के बारे में भी ज़रूर ध्यान रखना है. एंड डेफिनेटली इट्स ऑलवेज बेटर इफ इट रिलेट्स टू आवर कोर सब्जेक्ट्स, दैट मीन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स. सो वो हमारे लिए डेफिनेटली अच्छा हो सकता है. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हो. तो जो हमारे बेसिकली जो हमारे कोर सब्जेक्ट है, अगर उनके साथ वो रिलेशन रखेगा तो वो डेफिनेटली आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, एफर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे. सो दीज आर द पॉइंटर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. आई वांट टू नो लाइक हाउ मेनी अमंग यू फील दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पैशन विद यू एंड दिस इज द पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर विच यू थिंक you can move on. So guys, please let me know what you think can be your good optional and which you want to opt as optional. And also don't write it down na ki geography, instead of that just write it down, I have this quality and according to me this optional will suit me, what's your take? So I will help you out, I will revert you back on this particular thing that according to me what you should opt for. So that was it for this particular video guys. I hope you liked the session. Do subscribe to my YouTube channel if you had not yet, and
hit the bell icon so that all the notification of new videos get delivered to you. Along with that, guys, I always conduct a master class in which I let people know how to move forward with UPSC preparation, how to set your targets, how to make realistic plans. And if you are interested in that, then do register yourself by clicking on the link given in the description below. I will see you all in the next video. Till then, bye bye, guys.